Hello, friends. A warm good morning to all of you. Welcome to my channel, English Paramount. Thank you, all of you, for having liked and subscribed to my channel, and the videos that we have posted has been able to receive ample love and affection. I wholeheartedly thank you all very much. Due to some unavoidable circumstances, I had not been able to post any videos since the last 1 week. Further, this type of inconvenience from our side will be attempted to the best of our ability to be put aside. Hence, after a long gap, today I am posting my next video on the topic the ball poem. So, this poem is being included in CBSE syllabus class 10th, and that is why I tried to give a detailed analysis of the poem. So let's begin the ball poem. मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप ये सेशन किया है जहां मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों इंटरचेंजेबली साइमल्टेनियसली आई वुड बी यूजिंग both Hindi and English in order to explain you. So here is some details about the poet John Berryman, who was basically an American scholar and poet. You can pause the video and see the details that I have written here. Now moving on to the poem. मैं अभी कुछ आपको पोएम के बारे में बताऊंगा. जो लाइंस यहाँ पे सीबीएसई ने एनसीईआरटी सिलेबस जो है ना आप लोग का, वहां पे जो लाइंस दिया गया है खाली वो ही उतना ही नहीं है. पोएम पोएम और ज्यादा है, बट आई वुड बी टेकिंग टू कंसिडरेशन द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस. ठीक है ना. तो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अनुसार इतने ही हैं लाइंस दैट कंप्राइजेस द होल पोएम. So here is the poem. Let me read it aloud. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं ये पोएम में is that the poet is standing and he is watching a small boy who is playing with his ball, and he finds it out that the boy has a strong affinity towards the ball. He loves the ball. But one day, what happens when the poet is seeing this small boy playing with the ball, who is playing the ball near a harbor. हार्बर होता है ना जहाँ जो एक छोटे टाइप पोर्ट्स हम बोल सकते हैं, जहाँ शिप आते हैं, छोटे छोटे स्टीमर्स आते हैं. सो दैट इज कॉल्ड अ हार्बर. सो यहाँ वो बच्चा अपने बॉल के साथ खेल रहा था. पोएट हमारे देख रहे हैं और सडनली क्या होता है, द बॉल इट बाउंसेस एंड रोल्स इनटू द वाटर. ठीक है. वो बॉल बाउंस होके वो वाटर की तरफ जाता है और वाटर में डूब जाता है. The poet here, he is trying to make a question in our mind
about the importance of things, the importance of things in our life. इसके ऊपर ही पूरा पोएम हमारा जो है, द बॉल पोएम, इसके ऊपर ही बेस्ड है. ये छोटा सा इंसिडेंट जो मे बी हमारे लिए ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, बट वो जो छोटे लड़के के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है. ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज चेंज्ड हिज लाइफ. क्या हुआ, कैसे हुआ, चलिए अब हम देखते हैं. So, let me begin. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So basically, in this stanza, the poet tries to make a situation out of the circumstances that he has seen, that he has encountered, where the boy has lost his ball. So he says us to understand the situation of the boy and relate it to our life. यहाँ पोएट हमें अपील करते हैं कि वो जो सिचुएशन जो वो बॉय के साथ हुआ है, द लूजिंग ऑफ द बॉल, राइट, वो सिचुएशन को हमको एनालाइज करने के लिए पोएट हमको अपील कर रहे हैं. तो यहां हुआ क्या है, यहां वो जो लड़का का सिचुएशन को हमको एनालाइज करना है. What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. So he exclaims that the boy is under such situation that he feels pressurized, he feels devastated. उसको वो बॉय का मेंटल सिचुएशन को हमको समझना है. आप भी बचपन के टाइम आपका भी कुछ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉयज होंगे, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगे जिसके साथ आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा. जस्ट यू गो एंड बी इन द सिचुएशन ऑफ द बॉय. आपको कैसे फील होगा अगर आपका एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही अटैच्ड थिंग आपसे दूर हो जाए. दैट इज द सेम सिचुएशन ऑफ द बॉय. He states that he sees the ball go down the street, dancing and bouncing into the water. Here, personification has been used in order to describe the movement of the ball. Personification is such a figure of speech where an inanimate object or a thing is given the values and the qualities of a human being or of a living being. Merrily bouncing मतलब खुशी खुशी वो बॉल जंप कर रहा था, ठीक है ना. दिस इज जस्ट टू एम्फसाइज द पासिंग ऑफ द बॉल. इसी के लिए यहां पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है. सो फाइनली बॉल बाउंस हुआ है और वो जाके वाटर में गिर गया है, पानी में गिर गया है. द सेटिंग मैं आपको पहले से बोल चुका हूं, ये एक हार्बर है. मीनिंग्स में हर वक्त, हर जितने भी स्लाइड में आपके लिए तैयार किया हूं ना, मीनिंग्स नीचे है, तो आप पॉज करके वीडियो को आप मीनिंग्स देख सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आंसर. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. इन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. So this is the climax point of the poem. यहां होता क्या है, जो पोएट रहते हैं उनको रियलाइज हो चुका है कि जो बॉल जा चुका है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते. और एक बॉय, एक छोटा सा बच्चा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना होगा. अगर वो टाइम में अगर आप जाके बोलो कि बेटा कोई बात नहीं, हम आपके लिए और एक बॉल ले आएंगे, क्या वो समझेगा? नहीं, ऑब्वियसली नो. ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिकॉज ही हैड मेनी मेमोरीज लिंक्ड टू इट.
वो अपने चाइल्डहुड में वो बॉल पकड़ के वो स्कूल जा रहा होगा, वो बॉल को ही लेके वो अपना प्लेग्राउंड जा रहा होगा, वो बॉल को ही लेके वो अपना बेड में किसी किसी का रहता है ना, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉयज रहता है, टेडी बेयर रहता है, आप पकड़ के उसको सोते हो रात को। एग्जैक्टली वो भी कुछ ऐसे पर्सनल मोमेंट्स वो बॉल के साथ वो लिंक्ड था, जिसको वो अभी ढूंढेगा, याद करेगा, ही वुड बी रिकॉलिंग इट। ओके, सो अगर आप एक नया बॉल दे भी देते हो तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज ही इज एट प्रेजेंट ही इज शॉक्ड, ही इज बैफल्ड by seeing the sudden loss of this belonging of this ball, right? So this complete circumstance has transformed the boy into a different person. वो अभी खड़ा है, वो पूरा रिजिडली वहां पे खड़ा है, इनफ्लेक्सिबल, ही इज नॉट मूविंग, ही इज लुकिंग इनटू द वाटर, ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द बॉल व्हिच इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम हिम। जैसे पानी बहता जा रहा है, वो बॉय और वो बॉल का दूरी उतना ज्यादा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट? और ये जो सिचुएशन है, ये एक मेटाफोर है, बिकॉज मेटाफोर का भी मैं आपको आगे बता दूंगा डेफिनेशन। इट इज कंपेयरिंग समथिंग, तो कंपेयरिंग समथिंग विदाउट द यूज ऑफ एज, लाइक, सो, ये सब वर्ड अगर आप यूज नहीं करते और कंपेयर करते हो। ये जो बॉल का मूवमेंट है, ये जो दूरी है जो इनके बीच बन रहा है, ये क्या है? ये दूरी है उसके चाइल्डहुड और उसके एडल्टहुड के बीच। ये दिखा रहा है, ये जो बॉल उससे उससे दूर जा रहा है ना, दिस सिग्निफाइज दैट द टाइम इज गोइंग अवे, ही इज ग्रोइंग अप, राइट? ही इज ग्रोइंग अप, he has many things to do in his life. So this particular incident is making him realize about the change in his life, the change that has occurred in his life. The poet states that he would not interrupt the boy. वो जो लड़का वहां देख रहा है, खड़ा हुआ है, वो फॉर्मली ही इज गेजिंग एट दैट बॉल। यहां पोएट है ना, पोएट बोल रहे हैं कि फायदा ही नहीं है, वो जाके इंटरप्ट करने से भी कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज you can console that person, you can console not only that person, you can console a person when he has lost something or someone in his life, but you cannot bring back or you cannot replace the lost memories, right? वो चीज उसके माइंड में बार बार फ्लैश आ रहा होगा। और इट इज नॉट अबाउट ऑल्सो मनी, मनी भी एक ऐसा चीज नहीं है जो उसको वापस ला पाएगा वो चीज को उसके लिए, राइट? Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. ये जो सेक्शन है ना, इसमें एक सोशल मैसेज दिया गया है, और ये सोशल मैसेज में भी ये बहुत ही बिटर है। ट्रूथ इज बिटर टू हियर, राइट? ये एक ट्रूथ है, ये मे बी दिस मे बी अ बिटर सेंस of communicating it, but this is reality and we need to face it. We need to become responsible. अभी पोएट बोल रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे वो लड़का और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बन गया है। आप खुद वो बॉय का सिचुएशन समझो, आपने एक चीज, आपका बहुत ही प्यारा चीज आपने खो दिया है, देन यू वुड बी सडनली you would be crying, right? And after some time you would be realizing that it was my mistake. मैं अगर वो हार्बर के पास नहीं गया रहता, वो बॉल के साथ वहां नहीं खेले रहता, तो वो बॉल नहीं गया रहता मेरे हाथ से। नाउ दिस सिचुएशन विल मेक यू realize your responsibility towards yourself, towards your family, towards the society, and towards the nation in general. So in this world of possession, यहाँ पे जो world of possession का मीनिंग है ना, इसका मतलब ये है कि we people, we all have strong affinity towards materialistic possession. सबका रहता है, being human being, हमारा strong affinity रहता है towards one or the other material. ठीक है, material यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप जो भी समझ सको, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई फिजिकल थिंग्स हो,
चाहे वो कोई ड्रीम्स हो टू फुलफिल, तो ये वर्ल्ड में ना सब अपने पोजीशंस से ही डील करते हैं। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है। और आपके लाइफ में पीपल दे वुड कम, दे वुड गो, थिंग्स वुड कम, थिंग्स वुड गो, but no one will bring you the same ball back. No one will bring you the lost memory that you have already left in the past. जो आपका लॉस्ट मेमोरी है, आपके लिए वो कोई वापस नहीं ला सकता। आपने जो मेमोरी क्रिएट किया था वो थिंग के साथ, द थिंग दैट यू हैव लॉस्ट, नो वन बायस अ बॉल बैक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चाहे तो भी आपका बॉल वापस नहीं आपको लाके नहीं दे सकता। आपका जो पर्सनल थिंग था वो आपको वापस लाके नहीं दे सकता। मनी इज एक्सटर्नल, माइंड इट, मनी इज एक्सटर्नल। मनी एक सुपरफिशियल एलिमेंट है, वो एक ऊपरी सामान्य चीज है। मनी आपको और एक नया ऑब्जेक्ट तो लाके दे सकता है, वो ठीक है। जो पॉइंट बोल रहे हैं ना कि उसको और एक बॉल देने से भी वर्थलेस है, वो क्यों बोल रहे हैं? क्या इसका मीनिंग ये है कि उनके पास पैसा नहीं है? नहीं, वो और एक बॉल लाके दे सकते हैं, बट वो मेमोरी लाके दे सकते हैं क्या? वो अटैचमेंट जो उसका लिंक्ड था वो ऑब्जेक्ट के साथ, वो सेम अटैचमेंट वो ये बॉल के साथ कर पाएगा क्या? नो, द सिचुएशन, द कंडीशन वोंट बी द सेम, राइट? सो द ओल्ड मेमोरीज वंस दे हैव गॉन, दे आर गॉन। उसको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए मनी को यहां एक सुपरफिशियल एंड एक एक्सटर्नल चीज बोला गया है, because it can bring us materialistic object, but it cannot bring us the attachment that we had with the materialistic object that we possessed earlier, right? The fourth section, the last section, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. This section is the overall view of the poem. यहाँ पे poet, he is giving a strong message that we all should learn in such situation. जहां भी अगर हम कुछ भी अपना पर्सनल थिंग या पर्सनल देखो यहाँ पे खाली थिंग भी नहीं बोल सकते हम, इट मे बी समवन और समथिंग। बहुत टाइम होता है हम अपने बहुत क्लोज जो रहते हैं उनको भी हम खो देते हैं, बट लाइफ तो चलते रहता ना आगे। आपको वो टाइम में समझना पड़ेगा, लाइफ चलेगा, लाइफ वोंट स्टॉप, टाइम इज गोइंग ऑन। तो यहां पे वो बॉय के लिए पोएट यहां बोलते हैं कि तब जो जो लड़का था ना, छोटा लड़का था, वो लर्न करता है, वो अपने ही ये जो डेस्परेट आयज है, यहां पे डेस्परेट आयज इसलिए बोला गया है कि उसका और होप नहीं है कि वो बॉल वापस आएगा। फिर भी उसको अभी पता चला है कि लॉस का इंपॉर्टेंस कितना है। ही नाउ अंडरस्टैंड्स द ट्रू नेचर ऑफ लॉस। उसको थिंग्स का वैल्यू के बारे में उसको पता चल चुका है, और अभी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको पता चल चुका है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट। आप जितने भी चीजों को एनकाउंटर कर लो, सब चीज यहां मॉर्टल है, सब चीज यहां टेम्पररी है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट। और ये उसको अभी पता चल चुका है कि जो लॉस है ना, लॉस इटसेल्फ इज इनएविटेबल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लॉस होना ही है। ठीक है ना? एट लास्ट उन्होंने कहा है, पोएट ने कहा है कि यहां पे एक अच्छी जिंदगी जीने का महत्व कौन समझेगा? वही समझेगा जिसको लॉस का एक्चुअल नेचर पता है, जिसको पता है कि अगर हम यहां आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, एंड एट दैट सिचुएशन, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी नीड टू स्टैंड अप, वी शुड नॉट गिव अप।
कुछ टाइम तक हमको सैड लगेगा, बट अल्टीमेटली वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम ओनली रिग्रेटिंग while losing the thing. We need to stand up. We need to be determined. We need to gain that confidence in ourselves to stand up and move on in our life. And this is life in reality. तो यहां पे मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं जो एक ये पोएम में बोला गया है. बॉल ना, इसका बहुत सारा सिंबल यूज किया गया है. बॉल को एक कंपेनियन की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो बॉय के साथ जैसे फ्रेंड अटैच्ड रहते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ दो फ्रेंड्स जैसे अटैच्ड रहते हैं, ऐसे ही कंपेनियन बन चुका है वो बॉल. ठीक है. और बॉल एक कलेक्शन ऑफ मेमोरीज बन चुका है. मेमोरीज का एक कलेक्शन है वो. यहां पे जो वो बच्चे का जो मेमोरीज था, पास्ट मेमोरीज था, उसका सिग्निफिकेंस है ये बॉल. ठीक है. और ball itself means it is a symbol for the innocence that the child has, right? और अगर ट्रू सेंस में देखें तो जो हमने अभी देखा है, बॉल इज अ मेटेरियलिस्टिक पोजेशन. वो एक मेटेरियलिस्टिक पोजेशन है, जैसे कि सबके पास रहता है. बोलते हैं ना, मेरा पेन, मेरा बैग, ये सब हमारा पोजेशन हम शो करते हैं. ऐसे ही बॉल यहां पे वो लड़के का था. एंड वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो बॉल वाटर में हम देखते हैं ना, जो वो चलते जा रहा है, द फ्लोइंग अवे फ्रॉम लाइक ऑफ द बॉल, दैट मीन्स द चाइल्डहुड इज गोइंग एंड एडल्टहुड इज कमिंग. उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रहा है, राइट? जैसे वो बड़ा होगा वो और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम. यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड जो है, यहां पे बहुत सारा विशेष रहता है. हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहता है, नॉट ओनली फ्रॉम आवरसेल्फ बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर्स विथ whom वी आर लिंक्ड विथ. सबका कुछ ना कुछ एक पर्सनल एफिनिटी रहता है, कोई थिंग्स के प्रति, कोई पर्सन्स के प्रति. एंड व्हेन वी लूज दैट थिंग और व्हेन वी लूज दैट पर्सन, वी फील डिवास्टेटेड. हमको ऐसा लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो गया और आगे नहीं जिया जाएगा. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ नेवर स्टॉप्स. लाइफ कभी रुकने वाला है नहीं, राइट? सो व्हाई टू फील डिवास्टेटेड? व्हाई टू गो इनटू डिप्रेशन? व्हाई टू क्राई आउट? हमें जिंदगी से कुछ सीखना पड़ेगा. वी नीड टू बी मोर एंड मोर रेस्पॉन्सिबल, राइट? लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, कभी खुशी रहता है, कभी गम रहता है. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिजरीज, we need to tackle it. We need to encounter the difficult situation, and there we need to be responsible and we need to stand up, right? So this was all about the ball poem. If you liked this video, then please like it, share it, and subscribe to our channel. Thank you all.